ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੁਖੀਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਜੀਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 13th 14th 15th ਮਾਰਚ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਤਮੰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਅ ਨੇਸ਼ਨ, state or social group that determine the powers and duties of the government and grant certain rights to people in it। ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਾਂ ਲੋਜ਼ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਤੇ ਲੋਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਟਨ, ਇੱਕ ਅਨਰਿਟਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਨਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 195 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 190 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਨ ਹੈ। ਔਰ 190 ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਈਕ 70% ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਨੇ। ਟਾਈਪਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਫਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਟਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੋਲ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਸੋਲ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ 5 ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ ਸੋਵਰਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਸ਼ਲ, ਥਰਡ ਸੈਕੂਲਰ, ਫੋਰਥ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਫਿਫਥ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
फिफ्थ रिपब्लिक, सिक्स जस्टिस, उस तो बाद इक्वैलिटी हो गया, फ्रैटर्निटी हो गया। ठीक है, हुण आपां फर्स्ट इनग्रीडियंट तो स्टार्ट करते हैं। ਇਹਦਾ फर्स्ट इनग्रीडियंट है सोवरन। सोवरन का मतलब की हुंदा है प्रभु सत्ता संपन्न, मतलब जिथे भी किसी तरह का आपां नूं कोई भी एक्सटर्नल प्रैशर ना होवे। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड पॉइंट है सोशल। सोशल की हुंदा एक समाजवादी राज जिथे कि ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, जेड़े कि लॉ दे हर कोई, चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, कि वो लॉ दे की होए, इक्वल होए। ठीक है, थर्ड की है सैकुलर। सैकुलर का मतलब की है धर्म निरपक्ष राज, मतलब कोई भी इंडिया का रिलीजन है ही नहीं। जिन्ने भी रिलीजन बनाए गए ने वो एक मतलब आम आदमी द्वारा बनाए गए ने। इंडिया का कोई भी एक परमानेंट रिलीजन है ही नहीं। आपां कहने आपां सिख हाँ, आपां हिंदू हाँ, आपां मुस्लिम, आपां क्रिश्चियन हाँ, नहीं। एक मतलब इंडिया दे विच कोई भी एक स्पैसीफिक रिलीजन है ही नहीं कि इंडिया का एक परमानेंट रिलीजन होवे, ता करके इंडिया की है एक सैकुलर कंट्री है। नैक्सट अपने को है डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतंत्री राज, कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट फॉर पीपल और गवर्नमेंट बाय पीपल, कि लोगों की सरकार, लोगों लई सरकार ते लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, ये चार समझ आए कि सोवरन की हुंदा है जिहदे च आपां नूं कोई भी एक्सटर्नल प्रैशर ना होवे। सोशल की है कि ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, कि लॉ की नज़र च सारे इक्वल ने, नो वन इज़ रिच और नो वन इज़ पुअर, कि कोई भी रिच या कोई भी पुअर नहीं है। सैकुलर की है कि कोई भी इंडिया का रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक की है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट फॉर पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल, कि लोगों की सरकार, लोगों लई सरकार ते लोगों द्वारा सरकार। ठीक है, नैक्सट है रिपब्लिक। रिपब्लिक की हुंदा है गणराज, मतलब री इलैक्ट, कि आपां दोबारा तो दोबारा इलैक्शनस करवा सकते हैं। दोबारा तो दोबारा इलैक्शनस करवाने का मतलब की है कि आपां प्रेजिडेंट नूं एक टैन्योर दे बाद, एक टर्म दे बाद आपां प्रेजिडेंट नूं चूज कर सकते हैं। मतलब रिपब्लिक का मतलब है कि वो चीज़ नहीं कि जिवें एक किंग क्वीन का जिहड़ा रूल है वो चलता रहता है, आपदे मतलब फैमिली दे विच ही रूल चलता रहता है। बट इंडिया की एक रिपब्लिक कंट्री है जिथे दोबारा आप री इलैक्ट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन इलैक्शंस किए करवा सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद सिक्स्थ है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होंदा है न्याय, जिहदी तीन टाइप्स होंदियां ने, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इनू याद करन दा एक फॉर्मूला है 3 सितंबर, मतलब एस ते की हो गया सोशल हो गया, ई ते की हो गया इकोनॉमिक हो गया, और थर्ड ते की हो गया पॉलिटिकल। थर्ड का मतलब है 3 टाइप्स हो गया जस्टिस दियाँ। फर्स्ट केड़ी है सोशल, सैकेंड इकोनॉमिक, थर्ड पॉलिटिकल, मतलब समाजिक, आर्थिक ते राजनीतिक। ठीक है, कि रिपब्लिक का मतलब की होंदा है गणराज या गणतंत्र। अपनी इंडिया की एक रिपब्लिक स्टेट, रिपब्लिक कंट्री है। जिमें रिपब्लिक डे कदों सैलीब्रेट किया जाता है 26 जनवरी नूं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे कदों सैलीब्रेट किया जाता है 15 अगस्त नूं। और रिपब्लिक का मतलब होंदा है री इलैक्ट, मतलब अगेन एंड अगेन इलैक्शनस। जस्टिस की होंदा है न्याय, जिहड़ा कि लॉ के अकॉर्डिंग आपां नूं जजिस दिंदे ने, जिवें हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोर्ट्स दे विच। और यदि टाइप्स याद करने का तरीका की है 3 सितंबर। थर्ड का मतलब है 3 टाइप्स, सितंबर का मतलब की है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, नैक्सट अगे अपने को है लिबर्टी। लिबर्टी की होंदा है सुतंत्रता, मतलब आज़ादी। ये 5 टाइप्स होंदियां ने एदियां, और यदि 5 टाइप्स नूं याद करने का तरीका की है टैप, फास्ट, वर्क। ठीक है, हुण अगे टैप तो की है फ्रीडम ऑफ थॉट, टी तो की है फ्रीडम ऑफ थॉट, ई तो की है एक्सप्रैशन, कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रैशन का मतलब विचार रखन ते प्रगट करन दी सुतंत्रता, कि आपां आपदे थॉट्स ते आपां आपदे विचार एक्सप्रैशन कुछ भी आपां आपदे प्रगट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शनस।
कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ऑफ ਬਿਲੀਫ ਐਂਡ ਫੇਥ, ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। मतलब ई ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, एक्सप्रैशन, बी ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, बिलीफ, ਤੇ एफ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, फेथ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पूजा ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड फेथ और फ्रीडम ऑफ वर्शिप। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਸਨ, ਐਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਸ, ਓ ਐਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ। ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਜਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਭਰਾਤੀ ਭਾਵ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਨਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ, ਇੰਟਰਗ੍ਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਈ, ਮਤਲਬ ਗੌਰਵ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੀ ਹੈ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम 'ਚ ਆਇਆ। ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ, 2 years 11 months and 18 days। ਕਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ, ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਈ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਔਰ ਥਰਡ ਹੋਈ 13 ਦਸੰਬਰ 1946। 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946, ਇੱਕ ਹੋਈ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਔਰ ਥਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, 13 ਦਸੰਬਰ 1946। ਔਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, 29 ਅਗਸਤ 1947। ਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟ ਸੀ, 389। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟ ਸੀ, 389, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ, 389।
जिन्हों 3 पार्ट्स 'च डिवाइड किया गया, ब्रिटिश इंडिया, चीफ कमिश्नर एरिया और प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया विच 299 स्टेट्स ने, चीफ कमिश्नर एरिया विच 4 स्टेट्स ने और प्रिंसली स्टेट्स च किन्नियां ने 93 स्टेट्स। हुण चीफ कमिश्नर एरिया दी स्टेट्स नूं याद करन वास्ते एक ट्रिक है अपने कोल, ABCD, मतलब अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। कुर्ग कित्थे है? कर्नाटका दे विच। की ट्रिक है? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग ते दिल्ली। ठीक है, हुण मतलब टोटल सीट्स किन्नियां ने? 389। ब्रिटिश इंडिया दे विच 292 सीट्स ने, चीफ कमिश्नर एरिया 4 ने और प्रिंसली स्टेट्स किन्नियां ने? 93। और चीफ कमिश्नर एरिया दी स्टेट्स याद करने का फॉर्मूला की है? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटका और D दिल्ली। ठीक है, लागी समझ। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे टीम मैंबर्स कौन सी? एक है फर्स्ट है अपने कोल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दी, अगे हुण आपां टीम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टैंपरेरी प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टैंपरेरी प्रेजिडेंट कौन सी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उस तो बाद प्रेजिडेंट कौन सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेजिडेंट कौन सी? HC मुखर्जी। की टैंपरेरी प्रेजिडेंट कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रेजिडेंट कौन सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेजिडेंट कौन सी? HC मुखर्जी। लीगल एडवाइजर कौन सी? BN राव। और आपा कॉन्स्टिट्यूशन किन्नियां कंट्रीज तो बोरो किया होया? 60 कंट्रीज चों। और कितना खर्चा आया सी? 64 लाख। ठीक है, की है टैंपरेरी प्रेजिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टीम प्रेजिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेजिडेंट कौन सी? HC मुखर्जी। लीगल एडवाइजर कौन सी? BN राव। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप किन्नियां कंट्रीज चो बोरो किया? 60 कंट्रीज चो। और कितना खर्चा आया? 64 लाख। ठीक है, हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। और ये क्वेश्चन सारा उही उन्हां चों ही है जिहड़ी मैं तुहानूं थ्योरी एक्सप्लेन की है। तो तुसीं ट्राई करियो कि तुसीं हुण आंसर खुद दे दिओ। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करियो, क्योंकि जिहड़ी थ्योरी मैं उपर एक्सप्लेन की है उहदे रिलेटेड ही क्वेश्चन नीचे ने। ठीक है, हुण जिवें फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। हुणे ही मैं तुहानूं एक चीज़ समझाई है यही कि प्रेजिडेंट कौन है। फर्स्ट ऑप्शन की है अपने कोल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड की है BN राव। थर्ड की है HC मुखर्जी। और फोर्थ ऑप्शन की है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। की राइट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कि प्रेजिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुण उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द टैंपरेरी प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टैंपरेरी प्रेजिडेंट कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है HC मुखर्जी। सेकंड BN राव। थर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है टैंपरेरी प्रेजिडेंट? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रेसिडेंट कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, हुण ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट हुण अपने कोल थर्ड क्वेश्चन है, टोटल मीटिंग्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली दी टोटल किन्नियां मीटिंग्स होईयां सी? ऊपर ही मैं तुहानूं करवाया है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड 4, थर्ड ऑप्शन है 5th और D ऑप्शन है 7th। और यदि राइट ऑप्शन की है A। फर्स्ट मीटिंग कदों हुई सी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, सैकेंड कदों हुई सी? 11 नूं। थर्ड कदों हुई सी? 13 नूं। फर्स्ट मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1946। सैकेंड 11 दिसंबर 1946 और थर्ड हुई है 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ सेकेंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हुणे मैं तुहानूं ऊपर एक क्वेश्चन करवाया है
कि डेट की है सेकंड मीटिंग दी। फर्स्ट ऑप्शन है 21 दिसंबर 1950, सेकंड 21 दिसंबर 1946, थर्ड 11 दिसंबर 1946 और फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। और यदि राइट ऑप्शन की है सी 11 दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है अपने को, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कि जेडी कमेटी तैयार की गई सी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वास्ते ओदा चेयरपर्सन कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन की है डॉक्टर बी आर अंबेडकर और फोर्थ ऑप्शन की है बी एन राव। यदि राइट ऑप्शन की है अपने को डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी ऑप्शन की है राइट है। और ड्राफ्टिंग कमेटी कदों तैयार हुई सी कदों बनी सी 29 अगस्त 1947, जिदा हैड कौन सी या चेयरपर्सन कौन सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नैक्सट सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु के नाम तो किनू जानिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ बी एन राव। और यदि राइट ऑप्शन की है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जेड़ा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन सी या हैड सी। नैक्सट सेवन क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स ऑफ कंस्टीट्यूएंट असैम्बली, कंस्टीट्यूएंट असैम्बली दी किनिया सीट्स ने। फर्स्ट ऑप्शन है 382, सेकंड 379, थर्ड 389, फोर्थ की है 400 और एदा राइट ऑप्शन की है 389, जिन्होंने 3 पार्ट्स च डिवाइड किया होया है। ठीक है, और उस तो बाद 8 क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली इज डिवाइडेड। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4 और इनू किन्ने पार्ट्स च डिवाइड किया है 3 पार्ट्स। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद 9 क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली, कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ब्रिटिश इंडिया की किनिया सीट्स ने। फर्स्ट ऑप्शन है 292, सेकंड 93, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 46 और यदा राइट आंसर किया 292। ठीक है, और उस तो बाद हुण अपने को 10th क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स ऑफ चीफ कमिश्नर एरिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली दे विच चीफ कमिश्नर एरिया दी सीट्स किनिया ने। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन की है 2 और एदा राइट आंसर की है ए ऑप्शन 4। ठीक है, मैं तुहानू फॉर्मूला भी दसिया सी एदा ABCD। ठीक है, नैक्सट है अपने को 11th क्वेश्चन, वट इज़ द डेट ऑफ अडेप्ट और इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन से जड़ा कदों बन के तैयार हो गया सी। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और इनकी ऑप्शन की है डी 26 नवंबर 1949। ठीक है, उस तो बाद अपने को 12th है कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कदों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नू आपां लागू करता सी। 26 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन 26 जनवरी 1949, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और फोर्थ ऑप्शन की है 26 नवंबर 1950 और यदि राइट ऑप्शन की है 26 जनवरी 1950। और उस तो बाद 13 क्वेश्चन है, टोटल टाइम ऑफ बिल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करन च कितना टाइम लग्या सी। फर्स्ट ऑप्शन है 2 years 11 months 18 days, सेकंड ऑप्शन है 2 years 9 months 18 days, थर्ड ऑप्शन है 2 years 13 days, फोर्थ ऑप्शन है 2 years 7 months 13 days और यदि राइट ऑप्शन की है ए 2 years 11 months और 18 days, 2 साल 11 महीने ते 18 दिन। वट इज़ द कंट्री नेम इन आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर्टिकल 1 दे विच कंट्री दा नाम की है। अपनी इंडिया कंट्री दा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर्टिकल 1 की नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड सप्त सिंधु, थर्ड वंदे मातरम और फोर्थ इंडिया और यदा राइट ऑप्शन किया अपने को भारत। ठीक है, नेक्स्ट अपने को 15 क्वेश्चन है,
हु इज़ द लीगल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइज़र कौन सी? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड BN राव, थर्ड जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ HC मुखर्जी। यदि राइट ऑप्शन की है BN राव। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ कंट्रीज वी बॉरेड कॉन्स्टिट्यूशन? किन्नियां कंट्रीज जो आपा कॉन्स्टिट्यूशन ले आए? फर्स्ट ऑप्शन है 62, सेकंड 64, थर्ड 60, फोर्थ 61 और यदि राइट ऑप्शन की है 60। ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंसिव ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने किन्ने पैसे लगे सी? ए ऑप्शन 62 लाख, बी ऑप्शन 63 लाख, सी ऑप्शन 64 लाख और डी ऑप्शन की है 65 लाख और यदि राइट ऑप्शन की है सी 64 लाख। ठीक है। 64 लाख रुपया लग गया सी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने। ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है Which state has the world largest flexible and rigid constitution? कि वर्ल्ड दा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लंबा केड़ी कंट्री दा है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड इंडिया, थर्ड कनाडा और फोर्थ की है साउथ अफ्रीका और यदि राइट ऑप्शन की है इंडिया कि इंडिया का जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैक्सीबल है और रिज्ड है। ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है विच कंट्री गेव द फर्स्ट आइडिया ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? केड़ी कंट्री ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिता सी? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड फ्रांस, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ स्विट्जरलैंड और यदि राइट ऑप्शन की है अपने को बी ऑप्शन फ्रांस। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है विच ईयर वी सैंग अ जन गण मन एज नेशनल एंथम? कि केड़े साल च आपां जन गण मन नूं एज अ नेशनल एंथम गाया सी? राष्ट्री मतलब नेशनल एंथम गाया सी, राष्ट्रीय एंथम करके गाया सी। फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकंड 1949, थर्ड 1950 और डी ऑप्शन है 1951 और यदि राइट ऑप्शन की है अपने को 1950। कदों गाया गया सी? 24 जनवरी 1950। ठीक है। और अगर आप इनू संस्कृत च गाने तो इनू किन्ने सेकंड लगते हैं? 20 सेकंड। अगर हिंदी च गाने तो इनू किन्ने लगते हैं? 52 सेकंड। ठीक है। और इनू पहली बारी कदों गाया गया सी? 27 दिसंबर 1911। जदों अपना जन गण मन नैशनल एंथम कदों बन गया सी? 24 जनवरी 1950। पर इनू पहली बार गाया कदों गया सी? 26 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਕਿਹਦੇ ਐਨੂਅਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਲਕਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਨੀਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦੀ ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਨ ਗਣ ਮਨ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 26 ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 52 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਨੀਸ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੱਥੇ? ਆਪਦੀ ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 21st क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किनू कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है BR अंबेडकर, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा और फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और यदि राइट ऑप्शन की है ए BR अंबेडकर। उस तो बाद 22nd क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हुम? इन्हां सारियां विचों कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया फर्स्ट किने दिता सी? फर्स्ट ऑप्शन है MN रॉय, सेकंड ऑप्शन है BR अंबेडकर, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है HC मुखर्जी और यदि राइट ऑप्शन अपने को की है MN रॉय। की ऑप्शन है MN रॉय। उस तो बाद 23rd क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा का फर्स्ट स्पीकर कौन सी?
ਉਹਦਾ फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, थर्ड ऑप्शन है BR अंबेडकर और उस तो बाद डी ऑप्शन है HC मुखर्जी। और यदि राइट ऑप्शन की है बी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ 1946 ਤੋਂ 1947 ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਔਰ ਫਸਟ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ 1946 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਔਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇ? ਫਸਟ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, फिर उस तो बाद 24th क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ विच कंट्री। कि जेड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो केड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फॉलो करता है? फर्स्ट ऑप्शन है UK, सेकंड USA, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ की है कैनेडा और यदि राइट ऑप्शन की है UK। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ नॉट बीन रिटन इन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैम्बल दे विच इन्हां विचों केड़ा वर्ड नहीं लिखा गया? फर्स्ट ऑप्शन है सोवरन, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड डेमोक्रेटिक और फोर्थ की है इंडियंस। यदि राइट ऑप्शन की अपने को इंडियंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद जिहड़ा उहदा इंडैक्स है फर्स्ट पेज है प्रैम्बल है। ठीक है, प्रैम्बल दे विच कैपिटल वर्ड्स 5 वर्ड्स की लिखा होया वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया लिखा होया, इंडियंस नहीं लिखा होया। उस बाद प्रैम्बल दी डिफरेंट इंग्रीडिएंट्स भी ने सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक। ता करके इन्हां चों केड़ा वर्ड है जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन च नहीं लिखा गया? वो है इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट 26th क्वेश्चन है विच ईयर इज रिलेटेड टू बैरूबरी केस। कि केड़ा ईयर अपना बैरूबरी केस होया सी? फर्स्ट ऑप्शन है 1972, सेकंड 1960 और थर्ड ऑप्शन है अपने को 1970 और उस तो बाद डी ऑप्शन है अपने को 1976 और इधर राइट ऑप्शन की है आंसर बी। ठीक है, कि राइट आंसर है अपने को 1960। देन 27th आंसर है अपने को The language of preamble of the Indian Constitution is taken from the Constitution of। कि जेड़ा preamble दे विच language दा आपा पार्ट लिया होया है वो आपा केड़ी कंट्री तो लिया होया है? फर्स्ट अमेरिका, सेकंड कैनेडा, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ की है आयरलैंड और यदि राइट ऑप्शन की है ए अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट अपने को 28th क्वेश्चन टिल नाउ the preamble of constitution of India has been amended for how many times। कि जेड़ा हुण तक जेड़ा अपना preamble है constitution दा ਉਹਦੇ 'ਚ किन्नी वारी अमेंड कीता है आपां preamble नूं। अमेंड हुंदा है कि ਉਹਦੇ 'ਚ कोई चेंजिस लियाने, क्योंकि आपां इंडिया दे constitution नूं बदल नहीं सकते बट आपां ਉਹਦੇ 'ਚ चेंजिस लिया सकते हैं, मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ आपां अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नेवर, सेकंड वंस, थर्ड ट्वाइस और फोर्थ की है थ्राइस और इधर राइट आंसर अपने को की है ए ऑप्शन नेवर। ठीक है, नेक्स्ट अपने को 29th क्वेश्चन है द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ preamble ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड या बोरेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। कि आपां लैंग्वेज ते आइडियल्स का पार्ट आपां कित्थों लिया गया है, केड़ी कंट्रीज चों लिया गया है या आपां कित्थों बोरो कीता है? USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। ऑप्शन की ने ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3 या ओनली 4 या ओनली 3 and 4 और यदि राइट ऑप्शन की है USA एंड फ्रांस, ओनली 1 and 2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यदि की है राइट है। नेक्स्ट उस तो बाद 30th क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम।
कि ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਆਫ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेकंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, थर्ड पीपल ऑफ इंडिया और फोर्थ की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और इधर राइट आंसर की है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने क्विज हो गए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ते प्रैम्बल दे। पहला मैं कॉन्स्टिट्यूशन ते प्रैम्बल नूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन किया, दैन उस तो बाद क्वेश्चन सी। अगर किसी नूं थोड़ा बहुत भी डाउट है किते भी तो या तो कमेंट्स च दस दिओ या टैलीग्राम ग्रुप च दस दिओ। ठीक है, हुण लास्ट ते अपने कोल 2 क्विज ने कि द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रैम्बल आर बोर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दा आइडिया प्रैम्बल दे विच आपां किहड़ी कंट्री तो बोरो कीता है। फर्स्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन और फोर्थ की है USSR कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन। कि आपां कॉन्स्टिट्यूशन दा बेसिक स्ट्रक्चर किहड़े आर्टिकल तो कंटेन कीता है लिया है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 21, सेकंड आर्टिकल 14, थर्ड आर्टिकल 32 और फोर्थ है प्रीएम्बल। ये अपने अज की क्लास सी पॉलिटी दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। हुण अज अपनी सैकेंड क्लास सी जीके दी। कल आपां करंट अफेयर कीते सी और अज आपां पॉलिटी कीती है और कल आपां की करांगे हिस्ट्री। इदां ही आपां डे बाय डे मतलब सबजैक्ट चेंज करके ते आपां सिलेबस कंप्लीट करांगे कि तुसीं भी इस चीज़ नाल बोर ना होवो और इंटरस्ट दिखाओ। ठीक है, थैंक यू।